Assalamualaikum. Today we are going to study the problem of longest common subsequence. So let's first discuss what this problem is. So a subsequence is a sequence of the same sequence with 0 or more elements left out. So आपके पास एक sequence है कुछ characters का और आप उसका कोई subsequence देखना चाहते हैं तो you can find a subsequence by deleting one or more of the elements of that sequence. A substring is different from a subsequence because substring is actually a consecutive string. So difference क्या है इन दोनों के अंदर कि subsequence के अंदर order matter आप सिर्फ order का ध्यान रखते हैं कि order same होना चाहिए लेकिन उसके जो characters हैं उनका consecutive होना जरूरी नहीं है जबकि substring के केस में characters are consecutive. For example, if you have this sequence x इसके अंदर आपके पास ये टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं और अगर आपने इसका कोई सबसीक्वेंस देखना है तो देयर आर मेनी पॉसिबल सबसीक्वेंसेस फॉर दिस सीक्वेंस x फॉर एग्जांपल AC GGG GCT GT. अब ये जो GT है अगर आप इसको देखें तो ये इसी ऑर्डर में आपके पास x के अंदर आ रहे हैं, G पहले आ रहा है और T बाद में आ रहा है. सो दिस इज अ पॉसिबल सबसीक्वेंस फॉर x. But this is not a substring of x because GT are not consecutive in x. So substring हमेशा consecutive होगा. Substring would always consist of the consecutive characters जबकि subsequence के अंदर सिर्फ order conserved रहेगा. So what is a common subsequence? So a common subsequence of two DNA sequences or any other sequences is a subsequence present in both the sequences. So let's say you have these two sequences x and y. इसका अगर आपने common subsequence निकालना है तो वो ऐसा subsequence होगा which is present in both of these sequences. Now what is the longest common subsequence? Now you know what a common subsequence is और आपको ये भी पता है कि बहुत सारे common subsequences हो सकते हैं between two sequences जैसे कि यहाँ पे आपके पास given है for these are all the common subsequences for the sequences x and y. इसमें से जिस common subsequence की length सबसे ज़्यादा होगी that would be your longest common subsequence. अब इसी example के लिए जिसमें आपके पास ये दो sequences हैं x और y इसके लिए the longest common subsequence is GCGA. Let's now consider another example. So you have two strings or two sequences and you have to find the longest common subsequence in these two sequences. So इसके अंदर जो आप longest common subsequence बना सकते हैं this could be CDGI. So length of this longest common subsequence is 4 and this longest common subsequence itself is CDGI. Then we have another example. इसके अंदर आप देखें तो EGI is a common subsequence. और भी बहुत सारे कॉमन सीक्वेंसेस हैं और अगर आप ये देखें तो दिस काइंड ऑफ सबसीक्वेंस इज नॉट अलाउड क्योंकि इसमें ऑर्डर कंजर्व नहीं रह रहा. सो अगर आप यहाँ इस स्ट्रिंग के अंदर देखें तो ई सी से पहले आ रहा है जबकि स्ट्रिंग 1 के अंदर सी ई से पहले आ रहा है. सो दिस काइंड ऑफ सबसीक्वेंस इज नॉट अलाउड क्योंकि सबसीक्वेंस के अंदर ऑर्डर आपने प्रिजर्व रखना होता है. तो इस एग्जाम्पल के केस में आपके पास लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंसेस CDGI. Now this is a third example. इसके अंदर आपके पास एक longest common subsequence है BACE और ABCE. Both are the longest common subsequences. अच्छा, so सबसे पहले हम इसका brute force algorithm देखेंगे. So actually हमने इसको dynamic programming से solve करना है. तो जो हमने last two algorithms देखे हैं dynamic programming से जो हमने solve किए हैं जिनमें से एक rod cutting था और दूसरा मैक्सिमम सबेरे सम था उसके लिए हमने 4 स्टेप्स किए थे. तो इसके लिए भी हमने 4 स्टेप्स ही करने हैं लेकिन जो सबसे पहले हमने रॉड कटिंग देखा था उसको हमने बहुत ज़्यादा इलेबोरेट सोल्यूशन देखा था उसका. उसके लिए हमने सबसे पहले उसका ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम बनाया था जिसमें रिकरेंस थी और फिर हमने उसके अंदर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की थी, उसका ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके देखी थी
और फिर उसकी सब प्रॉब्लम्स डिफाइन की थी। सो अगर आपके पास n लेंथ का रॉड था तो उसके अंदर सब प्रॉब्लम्स क्या थी, रॉड ऑफ लेंथ इन ऑफ इंचेस 1 ऑफ इंचेस 2 अप टू इंचेस n। सो इस तरह से उसके अंदर हमने सब प्रॉब्लम्स अपनी डिफाइन की थी। फिर उसके बाद हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग का रिकर्सिव फार्मूला बनाया था। फिर हमारे पास जो थर्ड स्टेप था उसमें हमने उस फार्मूला को एल्गोरिथम की शेप दी थी और वैल्यू ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाली थी। और फोर्थ स्टेप के अंदर जाके हमने उसमें जो ऑप्टिमल सोल्यूशन था वो निकाला था। फिर जब हमने सेकंड एल्गोरिथम देखा, मैक्स सबरे सम प्रॉब्लम, उसके अंदर हमने जो ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी थी वो हमने इंट्यूटिवली सेटिस्फाई करके देखी थी, उसका फॉर्मल प्रूफ नहीं देखा था। सो आज हम जो काम कर रहे हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस के लिए, इसमें हम जो इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन है उसका एल्गोरिदम और उसका रिकरियन ट्री या उसके अंदर जो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। सो हम ये चाहते हैं कि शुरू में हमने ज़्यादा डिटेल में इसलिए देखा था कि आपको एक दफ़ा सारे स्टेप्स का आइडिया हो जाए। अब आपको स्टेप्स का आइडिया हो गया तो हम अब ज़्यादा इंट्यूटिव सॉल्यूशंस की तरफ मूव करेंगे कि हमें इतने लंबे स्टेप्स ना करने पड़े टू रीच एट द फाइनल सॉल्यूशन, बल्कि हम इंट्यूटिवली कोशिश करेंगे कि हम अपने फाइनल सॉल्यूशन की तरफ जा सकें। सो अगर हम ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम की बात करें तो अगर आपने लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकालना है तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं। यू हैव टू सीक्वेंसेस, तो आप ये काम कर सकते हैं कि पहले सीक्वेंस के सारे सब सीक्वेंसेस निकालें, इसी तरह दूसरे सीक्वेंस के सारे सब सीक्वेंसेस देखें। अब देखें इन दोनों में से कॉमन कौन से हैं, कॉमन सब सीक्वेंसेस निकालें। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप में जाके लॉन्गेस्ट, ये जो आपने कॉमन सब सीक्वेंसेस निकाले हैं इनमें से जो लॉन्गेस्ट है वो फाइंड कर लें। अब दोनों सीक्वेंसेस के आप अलग अलग भी सारे सीक्वेंसेस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और थोड़ा सा एफिशिएंट मेथड ये भी हो सकता है, कंप्यूट ऑल सब सीक्वेंसेस ऑफ वन सीक्वेंस। ठीक है, दूसरे के भी ना कंप्यूट करें, सिर्फ पहले एक सीक्वेंस के सारे सब सीक्वेंसेस फाइंड करें एंड चेक इफ इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द अदर सीक्वेंस। यानी जो पहला सीक्वेंस है उसके सारे सब सीक्वेंसेस निकालें, उनको बारी बारी चेक कर लें कि दूसरे सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। और फिर इसमें से जो जो प्रेजेंट हो ऑब्वियसली दैट इज अ कॉमन सब सीक्वेंस, और फिर जितने भी प्रेजेंट होंगे जो कॉमन होंगे उनमें से जो लॉन्गेस्ट है वो आप फाइंड कर लें। सो दिस इज द ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। तो इसके जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले आपने सब सीक्वेंसेस फाइंड करने हैं किसी सीक्वेंस के। सो एक सीक्वेंस के आप कितने सब सीक्वेंसेस बना सकते हैं। तो हमने जो डेफिनेशन देखी थी सब सीक्वेंस की, दैट वाज कि you can delete 0 or more elements of a sequence to get its subsequences। यानी हर एलिमेंट के लिए, हर करेक्टर के लिए आपके पास चॉइस है कि आप उसको डिलीट करें या ना करें। पोजीशन आप चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ आपके पास ये चॉइस है कि आप उसको अपने सबसीक्वेंस में ऐड करें या ना करें। सो अगर आपके पास n नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं एक सीक्वेंस के अंदर और आपके पास हर करेक्टर के लिए चॉइस है कि आप उसको अपने सबसीक्वेंस में ऐड करें या ना करें, तो you you will have 2 raised पर n possible subsequences। तो आपको एक सीक्वेंस के सबसीक्वेंसेस बनाने के लिए big O of 2 raised पर n टाइम लगेगा, विच इज एक्सपोनेंशियल। ये भी पहला स्टेप है जिसमें आपने सिर्फ सबसीक्वेंसेस बनाए हैं। इसके बाद अभी आपने देखना है कि कॉमन सबसीक्वेंसेस कौन से हैं, उनके ऊपर आपके लिए अलग से टाइम लगेगा। और फिर उसके बाद आपने देखना है कि उनमें से लॉन्गेस्ट कौन सा है, उसके लिए आपके पास अलग से टाइम लगेगा। ठीक है, सो ये जो आपके पास ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम है, दिस वुड बिकम ऑर्डर ऑफ n इंटू 2 रेज़ पर m। सो n और m क्या है यहाँ पे, m इज द लेंथ ऑफ फर्स्ट सबसीक्वेंस, n इज द लेंथ ऑफ सेकंड सबसीक्वेंस। ठीक है, तो आप पहले x के सारे सबसीक्वेंसेस बनाते हैं, दैट वुड टेक 2 रेज़ पर m, क्योंकि इतने सबसीक्वेंसेस हैं आपके पास। फिर आप इसको कंपेयर करेंगे y के साथ। अब आपने हर सबसीक्वेंस को देखना है कि क्या वो y के अंदर प्रेजेंट है, तो आपको n कंपैरिजन करने पड़ेंगे। सो n comparisons for all these subsequences that would take order of 2 raised per order of n into 2 raised per m। So this is an exponential time algorithm। ये जो आपका brute force algorithm है, this is exponential time algorithm। So brute force algorithm हमने देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि
जो हमारे डायनामिक प्रोग्रामिंग के 4 स्टेप्स हैं, अब हम वो अप्लाई करेंगे। तो पहला स्टेप उसमें था कि हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन को डिफाइन करना था कि हम वो कैसे फाइंड करेंगे, जिसके अंदर हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम पहले उसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स देखते थे, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते थे और सब प्रॉब्लम्स डिफाइन करते थे। सो अब क्योंकि हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग में अपनी फाइनल सोल्यूशन को सब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन से कंस्ट्रक्ट करना होता है, तो इसलिए हमें सब प्रॉब्लम्स डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम विल स्टार्ट विद द ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी देखेंगे एलसीएस के अंदर, और इसी से हम सब प्रॉब्लम्स भी अपनी डिफाइन कर लेंगे। हमें सब प्रॉब्लम्स को डिफाइन करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसी ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी से हम कर लेंगे। और सो लेट्स से, अच्छा, दिस इज आवर क्लेम, एलसीएस प्रॉब्लम हैज द ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। ठीक है, यानी ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर क्या होता है कि सॉल्यूशंस ऑफ द सब प्रॉब्लम्स आर पार्ट्स ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, यानी जो आपका फाइनल सॉल्यूशन है वो आप कंस्ट्रक्ट करते हैं यूजिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ऑफ द सब प्रॉब्लम्स। तो इसमें सब प्रॉब्लम क्या हो सकती है आपके पास, सब प्रॉब्लम्स को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्स और वाई, यू हैव टू सीक्वेंसेस एक्स एंड वाई, और आपने इसके अंदर सब प्रॉब्लम डिफाइन करनी है, तो आप कुछ छोटे सीक्वेंसेस ले लें, यानी ये जो x है इसका कुछ प्रीफिक्स मतलब शुरू का पार्ट कुछ ले लें x का, और इसी तरह y का शुरू का कुछ पार्ट ले लें। ठीक है, एंड फाइंड एलसीएस ऑफ द पेयर्स ऑफ प्रीफिक्सेस ऑफ x एंड y, यानी आप दोनों सीक्वेंसेस के छोटे छोटे पोर्शन, शुरू के छोटा सा पोर्शन कंसीडर करें और उसका एलसीएस फाइंड कर लें। दिस कुड बी योर सब प्रॉब्लम। सो इफ x इज, ये जो x सीक्वेंस है, लेट्स से इट इज फ्रॉम x1 अप टू xm। ठीक है, इसके अंदर m टोटल कैरेक्टर्स हैं, एंड लेट्स से योर y सब सीक्वेंस गोज फ्रॉम y1 अप टू yn। ठीक है, अब ये आपके पास दो सीक्वेंसेस हैं। अब हम कंसीडर करेंगे इसका एक एलसीएस है जिसको हम z कहेंगे, एंड लेट्स से z गोज फ्रॉम z1 टू zk, यानी कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की लेंथ इज k। ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें तीन तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, ये जो हमने डेफिनेशन अपनी एक्स वाई और जी के लिए हैं इनके अकॉर्डिंग। सो इफ एक्स एम इज इक्वल टू वाई एन, यानी एक्स का ये लास्ट कैरेक्टर और जो वाई का लास्ट कैरेक्टर है वाई एन, इफ एक्स एम इज इक्वल टू वाई एन, देन जी के, यानी जो 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 लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है इसका जो लास्ट कैरेक्टर है जी के इज इक्वल टू एक्स एम, यानी अगर आपके दोनों सीक्वेंसेस x और y का लास्ट कैरेक्टर सेम है तो दैट वुड बी द लास्ट कैरेक्टर ऑफ योर लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। ठीक है, और अब ये लास्ट कैरेक्टर आप इस z में से निकाल दें अगर, तो यू वुड बी लेफ्ट विद zk-1, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन z आर k। अगर आप kth एलिमेंट निकाल दें तो यू आर लेफ्ट विद zk-1। ठीक है, zk-1 इज एन एलसीएस ऑफ x m-1 एंड y n-1, क्योंकि इनके जो लास्ट कैरेक्टर्स हैं वो सेम हैं और वो हमने अपने एलसीएस के अंदर ऐड कर दी हैं। ठीक है, तो zk-1 इज एन एलसीएस ऑफ x m-1 एंड y n-1। सो इसका हम प्रूफ देखते हैं अभी। तो नेक्स्ट वी हैव, अगर लास्ट कैरेक्टर सेम नहीं है, xm इज नॉट इज इक्वल टू yn, देन zk is not equal to xm, यानी अगर वो सेम नहीं है तो that xm is not a part of your longest common subsequence। ठीक है, then z is an LCS of x m-1 and y, यानी ये जो xm है ये तो आपके longest common subsequence का पार्ट नहीं है, तो इसको आप रिमूव कर दें x में से। ठीक है, you are only now concerned with x m-1 and y complete। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या हो सकती है, इफ xm इज नॉट इज इक्वल टू yn, देन zk इज नॉट इक्वल टू yn, यानी yn अब पार्ट नहीं है आपके लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का, देन z इज एन एलसीएस ऑफ x एंड yn-1।